might be a little weird because I might be sitting right next to you while you're watching this video. But I really want to do an intro for this because a lot of friends and family have come together and they're going to do video messages and written messages daily. So just wanted to let you know कि तुम कितनी special हो and how friends and family have also feel the same about you. So enjoy the ride, have a blast, look at what everyone has to say, and I'll see you on the other side. You insist to be my friend, though I'm so busy. And whenever I need your help, I count to 5, 2, 3, 4, 5. See your face. You're the only fox in town who knows how to laugh and love. And I think that you're so special. It's not obvious that you're around. So if you think that I forgot it's your birthday, let me fix your mind. Now I can bring you the moon, but I can sing a song of love. And if you'll ever feel lonely, don't worry, I'll be on your side. 'Cause you're my best friend forever. I wish you all my best regards. You're so beautiful and brave. That's how I see you every day. You do magic with your hands, or you can build an aeroplane. You're the only boy in town who has love for everyone, even to the passion fruit tree around the corner of your house. So वीडियो बनाने को बोला गया है मेरी का वीडियो बर्थडे के लिए. I hope मेरी वीडियो वाली मतलब देखने आए. But let's begin. So पहला क्वेश्चन है, what was your first impression of me? देनी का दीदी का first impression I think हम लोग कोई concert में गए हुए थे. If I'm not wrong, that was the first time that we met. उससे पहले हम लोग मिले नहीं थे मतलब. हाँ वही था, हम लोग एक कॉन्सर्ट में गए थे. A.R. रहमान के कॉन्सर्ट में थे. गए थे भैया और सब फ्रेंड्स मुंबई से आए हुए थे. So या उस दिन तो मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, but मेरे हिसाब से फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे लिए was pretty much how I am with people when I meet them for the first time. बहुत ही introvert अपने में. I don't open up so easily and I felt the same. क्योंकि हमारी उस दिन ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी, but हाँ I could figure that थोड़ा introvert type से उस दिन मेरे को ऐसा लगा था. But obviously since इतने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं तो things have changed drastically. So yes, that was the first impression कि
काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर, एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगा था कि या सो ये था फर्स्ट इम्प्रेशन. What's the one thing that you like about her? What's the one thing I like about Denika Diti is that काफ़ी help, मतलब I don't have to, with her she's made things so easy. मतलब मेरे को कभी सोचना नहीं पड़ता, like it's almost like कि भैया ने एकदम राइट चॉइस की है because काफ़ी सही बॉन्डिंग वगैरह हो गई हमारी. एंड लाइक सिंस मुंबई एक्चुअली वहीं पे आई फिगर्ड कि एंड वी हैव अ इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट जस्ट वी हैव अ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप. वी आई स्पीक टू हर सेपरेटली. काफ़ी चीज़ें भैया को नहीं पता है जो मेरे को पता है. सो दैट्स समथिंग आई रियली लाइक अबाउट हर कि शी इज बिल्ड दैट एंड शी इज taught me that how to keep things separate. फालतू में मिक्सअप करने की जरूरत नहीं होती चीज़ों को. So that's one of the many things. But this is something that I have learned since I got to know her. So that's something that I really like. उन्होंने मुझे सिखाया. And plus, obviously, she gives me that reality check. मतलब it's not always कि हाँ नहीं जो कर रहे हो सही कर रहे हो. She gives me that reality as well. कि भले if I think that something is right, वो बताती है काफ़ी to the point कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So really like that about her. Next question is, how has she brought change in your life? Change in your life, I think there was a phase in between where I felt it that I was not discussing or interacting with भैया as much. बहुत वो था, I don't know why I was that. I think it was a lot like happened interaction also, and there was a lot of communication gap is what I feel. One thing she definitely changed is my equation with भैया. मतलब ऐसे नहीं कि खराब but हाँ बीच में there was a lot of communication gap वगैरह था, which I really feel that changed because of her. Because a lot of things got काफ़ी चीज़ें क्लियर तो क्या मतलब क्लैरिटी आ गई थी एंड वो मिसकम्युनिकेशन समझ आ गया था. मतलब आई जस्ट मेरे को लगता था कि सम थिंग्स वर अनएक्सप्लेन्ड, तो आई नेवर गिव इट अ थॉट. बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि वो मतलब काफ़ी टाइम हो गया है. देयर इज अ वेरी बिग कम्युनिकेशन गैप बिटवीन मी एंड भैया, जो कभी होता था नहीं, बट वो बीच में कोई फेज आया था. बट हाँ दैट टाइम शी रियली चेंज्ड द वे थिंग्स वर बिटवीन मी एंड भैया, एंड वो काफ़ी इवॉल्व हो गया उसके बाद से. तो मेरा so yeah, so that's one thing that she's changed. And I can't think of anything right now, but I had thought of an answer. I think ये अभी दिमाग में नहीं आ रहा कुछ. Yeah, but this is the most prominent thing that I can recall. Yeah, the other thing is that one मतलब उनकी वजह से मतलब काफ़ी मतलब बीच में जो मेरे को वो स्ट्रेस था अबाउट चेंजिंग माय जॉब एंड गिविंग इंटरव्यू. आई रिमेंबर हाउ सपोर्टिव शी वाज एंड कितना एंड इक्वली बोथ. मतलब सिंस देनिका दीदी का बर्थडे तो क्रेडिट सारा मैं देनिका दीदी को दे रहा हूँ, बट इट वाज इक्वली बोथ फ्रॉम भैया एंड देनिका दीदी. बट हाँ नाउ इट्स लाइक एनीथिंग. I love the transition eventually जो सालों में कि anything that good happens in my life, I look forward to telling you along with भैया. मतलब ऐसा होता है कि यार फटाफट बताओ देने का भी भैया को. So I really like that. What's the one dish you've heard that Denika cooks? और I think उनको भी पता है आंसर. And ये मैंने खाया हुआ है, उसके बाद मेरे को इतना से खाने को कभी मिला नहीं है. So yeah, pesto pasta is something I'm spending. What's the one? What is one thing you'd like to do with Denika? ये तो I think it's time to go on a vacation with Denika. I think वो पेंडिंग है. हम लोगों ने मुंबई में तो काफ़ी मज़े मारे थे, बट हाँ छुट्टी पे जाने का प्लान हम देखते हैं. होगा जल्दी होगा, वो भी जल्दी होगा. और क्या करना है? घूमना ही है. That's the only thing that comes to mind. Which also includes road trips.
think that'll be fun. What's one advice for her as she turns 30, and how would you like to wish her? One advice that when she turns 30. Yeah, I don't know. Someone who's turning 30, all the best. You're getting old, maybe. थोड़ा सा डर लगेगा कि मेरे को तो सोच के डर लगता है I'll have to turn 30 someday. सोचा नहीं था. But yes, I don't have any advice as such. But yes, I would like to wish you a very very happy birthday. I really hope कि like last year, I hope that this next year we get to celebrate the birthday, your birthday, and many many more occasions together. काफी चीजें pending हैं. Life will be different when we get to meet often and आराम से बिना सोचे समझे ट्रैवल हो सकता है. काफी मजा आएगा. बट ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. मे बी होगा अपने आप चीजें खुलेंगी. बट यस, वंस अगेन आई एम विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. मजे मारो. लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग इट सून टुगेदर. आज हम देनिका दीदी के बर्थडे के लिए क्वेश्चन आंसर आउट करने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ देनिका? वेरी इंटेलिजेंट, समझदार, सुलझी हुई. यही मेरा भी है कि काफ़ी अच्छी लड़की है. और फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे कनॉट प्लेस में तो काफ़ी अच्छा लगा था मिलके. कनॉट प्लेस पे नहीं, बॉम्बे में. हाँ, बॉम्बे में. So it was nice meeting her that time. What's the one thing that you like about her? Not वेरी one- डिसिप्लिन. दैट इज वेरी गुड. और भी चीज़ें हैं कि मतलब काफ़ी जैसे वो थोड़ा उसको हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखने की आदत है. और अभी ज़्यादा तो इतना मालूम नहीं पड़ा उसके बारे में, पर जैसा भी पता लगता है कि उसमें है बहुत काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं. लेट्स सी, धीरे धीरे पता लगेगा. और How has she brought change in your life? चेंज वी स्टिल हैव टू अभी तो इतना सी मुलाकात व्हेन वी अभी तो ठीक है. अभी तो हम लोग फोन से फोन बस से- अभी तो ज्यादातर फोन से ही हमारा वो हुआ है, तो उससे तो काफी अच्छा. जब रहेंगे साथ में अच्छा रहेगा. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कब हम मतलब वो हमारे पास आते रहे या हम वहाँ जाते रहे. जल्दी ही मतलब मौका मिले. as soon as things will get better. What is the one thing activity you would like to do with Denika? घूमना फिरना, खाना पीना ज्यादा कुछ बना वेजिटेरियन खाना पीना. और उसको जो कुछ चीजें शायद श्रुति ने बताई हैं तो वो सब उसको बना के खिलानी है मुझे. और उसके भी हाथ से जो उसको पसंद है जो बनाती है, कुछ पेस्टो पास्ता वो खाया हुआ है वैसे एक बार. Next question वही है कि what's the one dish you have heard that Denika cooks हाँ, well and you want to try? पेस्टो पास्ता ना नाम उसका शायद यही है. हाँ. पेस्टो पास्ता. कब आप हैं? भाई पता नहीं Best pasta में इंटरेस्ट नहीं लगा. वहाँ के अगर रात अच्छे लगेंगे. What's one advice for her as she turns 30 and how would you like to wish her? अरे अभी ये तो क्वेश्चन अभी ये बहुत बाद की बात है. अभी नॉट नाउ. 30? तभी अच्छा हाँ 30? 30 तो अभी है. What? ओके यस 30 मैंने 30 तक में गया? हाँ क्या चीज 30 की मतलब तो उसको एडवाइस 30 एज. What's the one advice for her as she turns 30 and how would you like to wish her? with food and enjoy, we will enjoy together. अच्छा अभी 30 की अभी हो. वी विश हर हेल्दी वेल्दी एंड हाँ वही. Advice क्या है? वो तो ठीक है. हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ एंड दैट इज गुड. और क्या है? Advice क्या देना चाहोगे? 30 साल की उम्र में. Advice now, as we grow up, so we have to take care of our health also. That is very important. हाँ सेम. हेल्थ हमेशा Daily अच्छी रहे routines. और अपना ध्यान रखें एक दूसरे का. That is best advice. क्योंकि हमारे को तो कल 40 के बाद आई थी. Happy birthday. to you. कल वीडियो नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. एक मिनट. तो yeah, okay, cool. First of all, so thanks for joining. This is something which I'm really excited about. Ek to for Denika, I know her birthday is coming up, and I have a few questions jo I want you guys to answer and just share and see how what you think about it, and I want to see what Denika reacts to for all the answers. So, the first question I think for Salvi is, what is the first memory you have of Denika? The first
memory of Deenika that I have is everyone has seen that picture, and after the realization that Deenika had about that picture, she probably doesn't like it anymore. But there's a photograph where I am holding her in my lap. She's like this tiny. Yeah, I think I've seen that. The background story behind that is that she was so excited, or I was also so excited. The moment the picture got clicked, she peed on it. God. What a way to start. Yeah, that's honestly my first memory of her. So yeah. And Mayank, what was your first impression of Bhumika, and where did you first meet her? Do you remember? I think first I met her with Salvi, right? When did you meet her? I think birthday, right? My birthday? हाँ, Okay. है ना? I I think around Salvi के birthday पे. So it was fun. I mean, we didn't get a chance to talk a lot, but I think I could see that she has a strong connection with Salvi, and she really cares. Versus one of those siblings who's not interested that much. So that was my first recollection of seeing her. I remember the first time I talked to her properly was probably on Salvi's birthday. I think Taj Mahal, whenever we met. That is the first discussion I remember. Nice. That's nice. Okay, this is for both of you. What is one memory of Deenika that you have is very prominent and it doesn't go out of your mind? So we probably will have different answers. Yeah, of course. And please don't think much. Whatever comes to your mind. No, I'm not thinking at all. So a memory that doesn't go out of my head is so Deenika was always this touch me not, I don't care type of a person. Okay. So when I was leaving for Manchester, when I was going for my higher studies, like she was, even before that, like she didn't say anything. At the airport, she came and hugged me and she was crying. I was God. I was like, oh my God, this is serious. And that was actually, that's something that I still cannot forget. That face I cannot forget. And she's like, she just said like 3 words, I'm gonna miss you. So that was like very, very strong. Something like that coming from her was very, very strong. And then when I unpacked my bags, when I reached Manchester and my dorm room, the first thing I found was a card. It was a black paper with a white chalk written, I am gonna miss you. Oh God, that is so cute. And that is a lot coming from her. It was everything for me. So that is etched in my head. So yeah. मुझे लग रहा था मेरे को मोमो के लिए भी क्वेश्चंस रखने चाहिए. अब लग रहा है वो उसको काफी आज वो रखा है एकदम एक्साइटेड. ले आओ उसको ले आओ. So same question for Mayank and probably Momo as well. I don't know, but what is one thing that is something that sticks out about Deenika, a memory or any incident or anything of that sort? I think the one that I remember is especially around the time of marriage, right? Deenika functions because she was very helpful. Like she was all the time next to Salvi, making sure things are getting done and assisting Salvi with small things. So that was something I was really like, I did notice, and it was pretty good. I felt that this is a good relationship that the guys have, both of them, and it's good to have. Not everyone has that kind of relationship with siblings. So that's something I clearly remember very, very, very good. I would totally agree to that. Yeah. Okay. Something that you absolutely love about Deenika. It could be a quality, or it could be anything. Just it could be a behavior, or it could be something that she does, but that you really feel that Deenika does very well. She cannot fake it. She is Yeah, that's true. on the face. No matter who's in front of her, she will not do anything to please the person in front of her. It could be anybody, no matter what. Like one example is his favorite uncle, right? He messed up recently. So you can see, right? She cannot be like diplomatic and be like, oh, this happened, that happened. She's upfront and she's like, okay, dude, like this is it, I'm upset. I would have let it go, but she made him
I also told her to let it go, but she didn't. But that's how she is. Yeah, I agree, and I can relate to that. She can't put on a face or bullshit, so to speak. Exactly. Okay, I think I'll take that as a common answer by both of you. What is her most irritating habit? I think I can't hear you. You have to be loud. I think she has her own opinion, and I don't think she's that open to listening to others. And even if she listens, I don't think she cares that much. She's like, जो उसके दिमाग में बैठा हुआ है, that's what she's gonna do. Which I think with age you realize that that's not how it works. And I was the same way. So I think, but that's not something that's also something that will change over time because of the experiences and stuff. But I can clearly see she does not. She goes with what she has in her head. She sometimes loses her temper too soon. Where Wow, it's acha. like- I didn't know that at all. She's gonna kill me for this, but yeah, okay. I think सबसे ज़्यादा temper उसका जिसने देखा होगा वो शायद मैं तुम और dad है. So, but yeah, it's like, and once she loses it, there's no control. Like Yeah. So it's irritating to some extent because there has to be some boundaries around till what extent do you want to and can you push people. So when she's in her temper, she forgets those boundaries. So it is irritating. Got it. Okay, makes sense. So on that note, what advice would you give her? Would you give her something related to this or something outside of this? But think of one advice which you think you would like to give her, although you must have given her multiple advices over a period of years, etc. But at this point in time, what is that one advice you want to give her? I think she's young. She has a lot of resources at her disposal. My only advice to her would be she's blessed, so she should not worry about a lot of things and just take risk and think of and do something that most people cannot dream of, because with all the resources and everything, it's gonna be she should roll the dice. So, and she should think big, go after big things, because I think she has the potential. She's pretty smart. So I think it's definitely going to work for her, and she should take more risk. I think that's the same thing I tell Salvi and myself also. So that's the same advice to you also, like to everyone. We are all blessed, so let's just take some risk and get some big stuff accomplished, hopefully. I would have two advices for her. The first one is that she needs to, somewhat similar to mine, that she needs to start taking the risks. She sometimes boxes her anxiety and worries that it takes her long to like open up, to start taking chances in life and accepting failures, so to say. So my first advice is and my second advice is also kind of very similar and attached to this, is let go. जितना baggage तुम लेके रखोगे दिमाग में, वो बढ़ता ही जाएगा. So she has to learn how to let things go. Like, it's hard, but छोटी हो बड़ी हो, what I have learned is जितना ज़्यादा तुम चीज़ों को let go करोगे ना, your life will become easier and you'll be happier. So she has to learn to let go for sure, and she has to learn to take those risks and tell herself that she's good at it and she can do it. So it's like she doesn't take that risk, I feel. She needs to do that because she doesn't have that self-confidence in her. So I want to tell her that she can do everything. Whatever she tries, she does it better than she thinks. She does it better than anybody else. And she needs to know that so that she can start taking those risks. That's Right. all. Yeah. Great advice, I would say. I would take that for myself as well, I think. Great advice. What is one thing on your bucket list that you would want to do with her? Oh my God. I think so travel. many. Exactly. I think One. Give me one. Okay, Okay, next question would be, like, for example, if you say travel, what is the one country you want to travel to her with, or a place or anything, or one experience? Or South Africa, or the animal safari, be it any place in the world. I mean, travel, yes, it could be Alaska as well. It has to do something with nature and wildlife. I think why not Maldives? I mean, any of these places,
where you get time to spend, because I don't think we have ever spent time with Dinika, at least since marriage. I have, because always something or the other is happening, and when she's in Chicago, right, it's a small amount of time. Actually, this was the plan to hang out and everything, Abhi, but Just hang unfortunately. out in a good location, good views, good food, and some time. Yeah. That's it. Location, I mean, for us, yes, with Dinika and even with you, the only thing on our bucket list is travel. And travel, it could be to the rest of the world, it could be to whatever, every year, but it has to be travel. Yes. Yeah, I agree. I think that's something which you really bond on and you grow as people when you travel. So I have just for the record for Dinika to hear also, I have 5 more minutes. I have pushed out the call by 5 minutes, told them I'll be late. So let's finish this right now. I have just 2 more questions. So I want to know, how does she make you feel? And so yeah, that's my question, and I want to hear what each of you think. What about this? And it could be anything, okay? Just be blunt. I mean, feel in the sense she's part Like of the family. generally when you talk to her or her presence, how does she make you feel? Does she make you feel a So certain way? someone who's very concerned about her family, which is not some anyone would doubt. So she's extremely concerned, mummy ki health ko leke and all those other things, like COVID and whatnot. So she's very that's where her focus is. But I don't think she makes an effort to project that onto the family. They have concern. That's just an initial read on all that. Salvi. So how do I feel? Sometimes it's irritating. I'll be very honest. But most of the times she's my comfort cushion. It's like there's certain conversations which are hard to have with her. So that's why it feels like, you have those moments कि अरे यार मुझे ये बात मुझे I don't want to deal with her right now. That's like sometimes, but most of the times it's like if I have something going on, small or big, she's my comfort cushion and I know this is the person I need to go to. I don't think twice. There are no friends in the world that I have who I would think of before Dinika for some reason. She's my sounding board. So that's how I feel. It's like wherever she is, whatever is happening with me, I know I can pick up my phone anytime, day or night. It's just she's that person. That's what I feel. So there are times when just talking to her, listening to her, even if I don't tell her, I'm like, if I'll just say, hey, what's up? I mean, just that helps me. So I don't know how to say it, but it's like whatever you may call it. That's what Dinika is. So like I have 2 more questions. So I added just a question right now because of your answers. So since you both are a few years ahead, and for some people turning 30 might be a big deal. I know it's, like Dinika and I both don't think about these numbers a lot, but from the other side, right, is there something that you would tell her specifically around turning 30? So, man, you want to take that first again? Okay. Yeah, Momo needs more attention. So I'll take it first. So nothing changes on the other side, for sure. This is a milestone, of course it is, because the only thing that changes, and it's not 30, it can be 31, 32, 34, whatever, but it just gives you that step. जैसे बोलते हैं ना कुछ milestones होते हैं जिंदगी में, it kind of gives you that stopping step to start thinking about your life a little more seriously, and not even seriously, and it's not that 30 से पहले लोग serious नहीं होते हैं. It's just you take a break for 1 second and think, hey, I'm 30. What do I really need to do with my life? It just, maybe it came to me. It's not necessary that it comes to everyone. Honestly, things don't really change. It's just a number. But if somebody wants to do something about whatever they're doing in life, I think it gives you that point in time to like take a break, think, यार हम 30 साल के हो गए हैं, करना क्या है life में basically. It's like if you look at like an Indian life expectancy, basically you're done with half of your life.
right? So it's like and for us primarily it was like, how do we make next whatever number of years of our lives better from here going forward? So that's what it is. I think 30 only brings you that realization. How do we make everything count more, and how do we make everything better in our life going forward? That's the only good change, and that's the only change I feel it in. Right, Mayank, anything you want to add, or you agree? I think age doesn't really matter. Age and wisdom don't go hand in hand. Fools also turn old, so regardless of if you're 30, 40, right? Just because someone's 70 doesn't mean that person is smart. What I'm trying to say is this is all in your head, but it will be a good time to just sit down and think what are the 5 things that are most important to you in your life, and just focus on the top 2. Because you can't fix everything, you can't work on everything. Just think what is really important, be it family, be it education, be it career, whatever it is, and just focus on those 2 things. Because the more you're trying to do, the more confused you're going to get, and the less you're going to accomplish. So think of what you're good at, think of what you want to be good at, and just focus on that. And just, things that give you happiness. That's the number one thing. More than anything, right? It has to be about, you should be happy when you go to sleep at night. You should feel, I'm happy, I'm content, regardless of, position, money, and all that. And family, because your happiness is your own, right? No one else has the responsibility to make you happy. Like, for example, I cannot take the responsibility of making her happy. I have to make sure I am happy, she's happy, and then we are together, we make each other happy. But it's all happiness is between your ears. So, just focus on what makes you happy, and your life will be a lot easier. And don't overcomplicate, overthink, because that's what we all do. I think it's an Indian thing, but just let it. Things will work out eventually. It has always been, so I'm sure in the future also. Perfect. I think that's very well said. And lastly, I think something which you guys can together say, anything that on her birthday, if you wanted to wish her something, or something that you've never told her before. I know you have said a lot of things, and I think a lot of that will add into this, but if you had to say something that you've never told her, feel free to say something. The only thing I'm going to say is she has this big void in her life that can only be filled with a French bulldog. So I think I was hoping then Momo features. but I think but I think a French bulldog, if you can gift her, will be a symbol of love and caring and life. Wow. So, I have a feeling ये planned है, Dinika और Mayank का plan है मेरे हिसाब से. I just feel that that's the best gift anyone can give her on her 30th birthday. Over and out. Okay. That'll be a gift to myself also, but unfortunately we'll have to plan that a little bit. That's fine. We can give you a blueprint of what to get from where. We'll take care of everything. Ooh, okay. This does sound Noted. He's dropped the bomb. Salvi, you want to say anything lighter? All I want to tell her is enjoy every waking moment of your life. 30 is just a number, but yes, it's like I just said, it's let go of a lot of things that are not important in your life. Just focus on what makes you happy. Things are only gonna get better from here. Everything's gonna get better from here. So just enjoy the next phase. That's all. Great, thank you guys. This was amazing. I'm sure Dinika will enjoy hearing to these messages. Okay, I think this is it. I'll keep you posted on what happens, and until then, I'll see you soon on a non-formal, non-recorded call. Chalo, bye. I have to jump quickly. Okay, bye. बहुत टाइम हो गया है और बहुत सारी चीजें हम साथ में नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में अच्छा लगेगा बात करने में. और अभी आंटी ने इतनी मजबूत फाइट करके आई हैं और जीती हैं, उसके बारे में भी बड़ा ठीक से आराम से बात नहीं हो पाई है बहुत टाइम से. थोड़ा टेंशन वाला माहौल रहा था, बड़ा टच वुड बहुत खुश हूँ मैं, अब सब चीजें बेटर हैं. तो मैं स्टार्ट करता हूँ अंकल आंटी आप दोनों से. तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप या तो दोनों जवाब दे दीजिए और अपना अपना जवाब दे दीजिएगा, ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना था, ये अपने लिए भी, कि आप लोगों ने दिनिका का नाम कैसे रखा. ये बहुत ही यूनिक नाम है और बहुत कम, मैं तो किसी को मिला ही नहीं जिसका नाम दिनिका है. तो ये कैसे पड़ा नाम और क्या सोचा था आप लोगों ने?
इसके पीछे सोच यही थी कि हमें ऐसा नाम रखना है जो यूनिक हो और जो डिफरेंट हो, जनरल हो। दूसरा अच्छा। क्या है कि वी हैव सर्च सो मेनी, मतलब क्योंकि हमें क्या होता है कि जब आप लोग पास ना वो सम टाइम्स नामकरण के लिए 10-15 दिन का कुछ समय मिलता है, तो उस बिटवीन में हमने बहुत रिसर्च की ऑलरेडी। हमने मतलब कि क्या नाम रखना है, तो इसका मीनिंग हमें पता। एक तो क्या था कि हमारे को बर्थ के नाम से इसका नाम स्टार्ट होता था दै से, डी से, तो स्टार्टिंग नेम भी इसका डी था। तो हमने फिर पर्टिकुलरली एक तो ये था कि हमें नाम जो है जो वही नाम रखना है जो डी से स्टार्ट हो। अच्छा। तो उस केस में फिर हमें ये नाम मिला, तो हमें लगा कि कहीं नहीं, और इसका मीनिंग है कि भाई सनराइज, सूरज की किरणें। ओह, कि हमारे घर के अंदर तो ये हमारे के अंदर के पूरी अंदर जो है सूरज की किरणें ही आ गई है। तो हमारे घर के अंदर जो है एक सनराइज हुआ है, तो हमने इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। एंड वी हैव वाह डिसाइडेड दिस नेम एज दिनिका। वाह, दीनिका का सूरज की किरणें है और मेरा नाम का मतलब है होराइजन। मतलब उगते हुए सूरज की किरणें। बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो आप लोगों ने खुद, किसने, मतलब दीनिका जो नाम आया था वो किसने पहली बार सोचा था? फाइंड आउट सम, मतलब कहीं हमने उससे सर्च किया, हमने जैसे अच्छा। नेम्स की बुक्स आती हैं, या हाँ जो उस समय इतना गूगल वगैरह तो होता नहीं था। हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ, मतलब इतना नहीं था, मेल्स वगैरह तो स्टार्ट हो गई थी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो बेसिकली ये जो सर्च किया हमने, जो नेम की बुक्स हैं वहाँ से सर्च किया हमने। कुछ बुक्स हमने मार्केट से परचेज की, उसमें हमने फाइंड आउट किया। तो वी हैव सर्च अच्छा, आउट। वेरी नाइस। सो आप लोगों को मतलब बर्थ के पहले ही पता था, मतलब सॉरी, पैदा होने के बाद आपने मतलब 1-2 महीने में या एक हफ्ते में? हमें नहीं पता था कुछ। हमने बाद में ही रखा है नाम, बाद में ही रखा है, बाद में ही सर्च किया हमने। और आपने मतलब 1-2 महीने में हो गया होगा नाम पूरा? उससे पहले हमने बुक वगैरह लेके रखी हुई थी, तैयारी की हुई बुक्स थी। वगैरह हमने ली तैयारी, हुई अच्छा, थी। नाम शॉर्टलिस्ट, लड़के लड़कों के हाँ, नाम शॉर्टलिस्ट। नहीं नाम, मतलब बुक्स लेके रखी हुई थी। नाम तो हमें पता ही नहीं था, जेंडर तो हमें पता ही नहीं था क्या है। नहीं, मेरे को लगा कि आप लोगों ने लड़कों के लिए रखा होगा, लड़कियों के लिए भी रखा होगा, जो जैसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस अच्छा, हमने बुक्स अच्छा। लेके रखी थी, थोड़ा सा मतलब उसको ऐसे सर्च कर लिया था। अच्छा, बहुत सही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपके। कुछ जब दीनिका पैदा हुई और बचपन की कुछ ऐसी कुछ मेमोरी है जो आपको हमेशा याद आती है? हो सकता है अलग अलग मेमोरी हो दोनों के लिए, तो वो भी हो सकता है, बट एक चीज जो आपको लगता है इमीडिएटली बचपन के बारे में सोचते हैं, दीनिका के बारे में, तो क्या याद आता है? कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा जो भी है। दीनिका के बारे में देखो, एक तो ये हुआ था कि भाई वैंसी बॉर्न को हमें बताया कि शी इज ए वेरी लकी गर्ल, एंड ये बेसिकली ये बात तो हमें हमेशा याद रहती है। ये शी इज ए गॉडेस लक्ष्मी। बेसिकली ये एज ए लक्ष्मी आपके घर में आई है, और आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी हमेशा। मतलब आप जो है, मतलब जब ये बेसिकली साक्षात देवी है, माता है, लक्ष्मी है, एक भी बताया गया। दूसरा ये था कि इसके बारे में कि ये क्या नाम है जो इसकी थी, वो एक्चुअली नक्षत्र होते हैं, मूल नक्षत्र। तो उसने कहा था कि ये जिद्दी और थोड़ी सी जो है ना, मतलब शाही थोड़ी सी रहेगी, शाही नेचर की रहेगी, जल्दी से किसी से बात नहीं करेगी, थोड़ा इसका नेचर शाही रहेगा। बट इसके कैरियर के बारे में, इसके लाइफ के बारे में आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। सी इज ए वेरी लकी गर्ल। मतलब बेसिकली रास री ठाट बाट रहेंगे इसके, आप अपने घर में भी, आगे भी इसके, मतलब सी इज ए वेरी। बल्कि इसके नाना जी ने जाएगी, इसके नाना जी ने तो बोला था कि ये मेरी बेटी है, ये तेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरी बेटी है। जहाँ पे भी जाएगी ये, कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बढ़िया। और बस थोड़ा सा इसका ये था कि भाई ये मतलब इसके बारे में ये है कि थोड़ी शाई है, और बेसिकली इसका जो ना, मतलब जो गुस्सा है वो बहुत ही, मतलब क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, उसके बाद ये बिल्कुल शांत हो जाती है। और कुछ ऐसी कुछ चीजें या मेमोरी या किसी ने कुछ बोला हो आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, किसी ने जो आपको अभी भी याद रहता है दीनिका के बारे में, या कुछ चीज जो शायद दीनिका को ना पता हो, ऐसा कुछ आपको, या कुछ ऐसा कुछ वाकया हो जो आपको याद आता है? दीनिका, देखो फैमिली तो क्या है कि हम लोग बेसिकली वी वर अवे फ्रॉम द फैमिली। तो यहाँ के लिए रहते थे हम लोग जिस समय दीनिका बॉर्न की। बट जिस घर में हम लोग रहते थे, तो मतलब बेसिकली उसको हम आज भी हमने उसको मुंह बोली बहन बनाया हुआ है, तो सी इज अवर सिस्टर। तो बेसिकली
जब से दिनिका हुई हमने तो पाला ही नहीं, उसको पाला ही उसी ने। छोटी को उन्होंने वही सारा केयर वही करते क्या थे, करते थे, मैं रात को सुलाने के लिए आते थे, या इसको जब कोई फीडिंग की जरूरत होती थी या कुछ उसकी। अदरवाइज तो क्या है कि उनकी एक बेटी थी, वो सारे दिन इसको कपड़े में लगा के बिल्कुल ऐसे लपेट के और 24 घंटे अपने हाथों में रखती थी, मतलब बिल्कुल। तो बेसिकली मतलब शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल आल्सो, मतलब व्हेन शी बॉर्न शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो वो तो गुड़िया जो थी उनकी, वो बिल्कुल छोड़ती ही नहीं थी उसको कि भाई नहीं ये तो मैं, मतलब कई बार तो झगड़ा हो जाता था उससे। उसकी मम्मी भी कहती थी कि नहीं, वो मतलब इतना इसको लव करती थी क्योंकि ये शी वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। छोटी जब ये छोटी थी तो बिल्कुल अपने पापा की कॉपी थी। हाँ अच्छा, ओके, हाँ मतलब हाँ दोनों के एलिमेंट्स तो हैं। अब तो फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन छोटी थी तो बिल्कुल पापा की कॉपी थी। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से अलग अलग पूछूंगा। और क्वेश्चन ये है, पहले आंटी आपसे पूछता हूँ। जब मैं दिनिका बोलता हूँ तो आपको इमीडिएटली क्या आता है दिमाग में, बिना सोचे समझे? अगर मैं बोलता हूँ दिनिका तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है, आपको क्या लगता है, क्या फीलिंग आती है, आपको क्या महसूस होता है? मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और कुछ चीज ऐसा लगता है आपको, जैसे मैं दिनिका बोलता हूँ तो आपको खुश, लाइक आपने बोला आपको फीलिंग अच्छी लगती है, और आपको कुछ चीजें या कुछ याद आता है, या कुछ आपको चीज ज्यादा लगती है, या कुछ इमेज आता है आपके माइंड में, क्या 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 कुछ ऐसा होता है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दिनिका को बहुत अच्छा सब कुछ मिला है, बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, सब बहुत अच्छा मिला है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, और अंकल आपको? मैं आई थिंक बहुत खुश हूँ, बहुत देखिए, खुश हूँ। आई वाज वरीड अबाउट हर चॉइस, क्योंकि शी इज ए वेरी चूजी गर्ल। तो मेरे को हमेशा ये मतलब दिमाग में था कि भाई इसकी शादी कैसे होगी, हाउ सिविल, मतलब बेसिकली कैसे चूज करेगी, थोड़ा टेंशन रहता था आपको? हाँ हाँ। कैसे इसको कन्विंस करेंगे, मतलब इसकी थोड़ी सी, फिर भी इट्स ए डिफरेंट चॉइस। तो बेसिकली बट आई एम वेरी हैप्पी कि भाई जो भी उसने मतलब आई एम प्राउड ऑफ हर आल्सो कि जो भी उसने चॉइस की, जो भी उसने डिसीजंस लिए, वेरी बोल्ड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन। और बेसिकली हमें नहीं लगता था कि पहले वो इतनी मेच्योर है, हमें लगता था कि वो बहुत ही मतलब शी इज ए चाइल्डिश। बट व्हेन वी सेंड हर टू अमेरिका, यूएस से भेजा हमने उसको, और जब यूएसए के बाद वो इंडिया आई तो शी वाज वेरी मच पॉलिश्ड, शी वाज वेरी मच मैच्योर्ड, पॉलिश्ड। उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, लर्न की लाइफ में। और जब वैन उसका हमारे साथ रहने का मौका मिला उसके बाद यहाँ पे, तो वी हैव सीन लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन हर। हमें लगा कि नहीं, वो दिनिका नहीं है जो पहले थी। ये नाउ दिनिका इज चेंज एंड वी आर हैप्पी कि मतलब शी कैन मैनेज एवरीथिंग। नहीं, आई थिंक उसको भी ये चीज बहुत लगता है, उनको बोलती है कि आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने जब मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे बाहर भेजा, आई थिंक वो काफी उसको रियलाइज हुआ उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आई थिंक उस टाइम पे। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है, जैसे ही आप घर के बाहर जाते हो आपको चीजें समझ में आती हैं। जैसे मैं, छोटी सी बात, मेरे को दाल बहुत पसंद है मुझे ये समझ में आया, मुझे दाल बहुत पसंद है घर के बाहर जाके। छोटी छोटी चीजें, बट आई थिंक दिनिका को बहुत फर्क पड़ा है। घर में क्या है कि आपको ना, यू गेट एवरीथिंग। हाँ, व्हेन यू आर आउटसाइड फ्रॉम द होम, देन यू वैल्यूज का। और हमें एक इंसिडेंस याद है दिनिका का, मैं वो अभी बताना चाहूँगा। व्हेन शी वाज इन इंडियन यूनिवर्सिटी, वो वहाँ पे थी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमें लगता था कि दिनिका इज ए वेरी बोल्ड गर्ल, मतलब, और वाकई शी बोल्ड, मतलब शी नेवर टोल्ड अस कि उसको कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती थी, शी नेवर मतलब से टू आई एम द प्रॉब्लम। तो वन टाइम व्हाट हैपेंड कि वहाँ पे टोर्नाडो आ गया, और वहाँ पे आते रहते थे। तो कॉन्सिडेंटली ये अपार्टमेंट में सिर्फ अकेली लड़की थी उस समय। अच्छा। और उस समय टोर्नाडो आया और उसने हमें कॉल किया, दिनिका ने, और कॉल करके कहा कि पापा, मतलब शी वाज वेरी स्केरी, और शी सेड कि पापा आई थिंक आई विल नॉट सर्वाइव टुडे। अच्छा, वो मुझे ये पता नहीं है।
हाँ, मतलब इट वाज सो स्केरी। बहुत ज्यादा तो मैंने कहा घबरा बेटा गई एकदम थी। कोने में चले जाओ, कोने में छुप जाओ, कहीं छुप जाओ। तो आप लोगों को तो मतलब बहुत टेंशन हुई होगी उस टाइम पे, तो काफी। मैं we can't बहुत do anything ज्यादा, from here, कर कुछ नहीं सकते थे। कर कुछ नहीं सकते यहाँ बैठे हुए। तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा वो इंसिडेंसेस का। फिर मैं एक बार उसी समय लाइट भी चली गई, फोन की ओहो। लाइन भी बीच में कट गई, लाइट चली गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई उस समय लाइट जाने से। तो अच्छा, एक इंसिडेंस ये मुझे ध्यान में दिनिका का एक इंसिडेंस मुझे और याद है बहुत अच्छा से। मैं, दिनिका और सालवी, आई थिंक जस्ट बिफोर मैरिज, मेरे ख्याल से 1 साल पहले उसके, अभी ये 2019 की बात होंगी आई थिंक, या 2018 की होगी, 18 की होगी, 2018 या 2019 की बात है। हम लोग ऋषिकेश से आगे वहाँ गए थे घूमने, बेसिकली। साल भी नहीं थी, साल भी नहीं थी, हाँ, हम 3 लोग थे, और हम थे, हम दोनों थे। हम लोग घूमने गए थे ऋषिकेश से ऊपर हरिद्वार, जगह का नाम मुझे ज़्यादा, मतलब होटल था वहाँ पे, गंगा किनारे के बिल्कुल साथ में एक होटल था, रिसोर्ट्स था, उसमें हम लोग गए थे, प्लान किया था। कोइंसिडेंटली ना उस दिनों बारिशें भी चल रही थी, मौसम शायद यही महीना था, जून जुलाई का ही महीना चल रहा था, जुलाई का, तो काफ़ी बारिशें हो रही थी और नदी वदी में काफ़ी मतलब पानी ऊपर आया हुआ था। तो उस रात कुछ शायद ज़्यादा ही बारिश हुई नहीं, और वो कुछ तो उसमें ऊपर से बादल कहीं से कुछ टूटा, वो चमोली की जगह थी, हाँ, तो शायद वहाँ को बादल फटा, तो पानी जो है ना बहुत भयंकर तरीके से नीचे आया। तो हम लोगों का जो होटल था गंगा के किनारे ही करीबन था। 50 फुट होगा या 30 फुट किनारे। तो सिवा सो स्केरी, पूरी रात नहीं करे पापा, ये हम लोग बल्कि सो गए बीच में, वो बेटा हमें कुछ उठा नहीं होता रही है। है। और ये क्या उम्र होगी दिनिका की इस टाइम पे? अभी 2 साल पहले। ओ अच्छा, ये अभी की बात है। ओ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अभी जब हमारे पास थी वो। अच्छा करो। मुझे नहीं पता था कि इसको कभी मतलब इतना डर लग सकता है। ये पूरी रात नहीं सोई है, और वहाँ बस खिड़की में विंडो में बैठ के उसी को देखती रही है, और हमें भी जगाती रही है, हमें बार-बार कि आप कैसे सो रहे हो, उठो, पापा उठो, पानी हम डूब ऊपर आ जाएंगे, पानी जाएगा। में पानी ऊपर आ जाएगा, पापा ये पानी ऊपर आ जाएगा, हमारा कमरा जो है डूब जाएगा। हम लोग होटल मतलब बेसिकली और हालांकि जो होटल्स वाले थे वो भी आए, उन्होंने सर्च किया सब। हालांकि हमारा जो होटल का चबूतरा था उसको पानी छू के गया है। अच्छा, ओहो बाप रे। हाँ, ये बताया नहीं कभी मेरे को इसने। बट जो है तो इसको ना मतलब ऐसा नहीं है, कभी जो ना बहुत ज्यादा। और दूसरा एक चीज और बताना चाहूंगा कि शी इज वेरी, मतलब ये शो नहीं करती है, बट इसको बहुत चिंता है अपनी फैमिली के बारे में। मतलब जिसको भी लव करती है अपने फैमिली के बारे में, शी इज वेरी वरीड। अब जब यहाँ अकेली थी, तुम वहाँ पे थे, तो शी वाज सो वरीड कि पापा मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, क्षितिज वहाँ अकेला है, पापा मैं यहाँ फंस गई हूँ, बेचारा कैसे ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। बेटे कोई बात नहीं, दिस इज द टाइम। उसको रहता था कि मैं तो अपनी फैमिली में हूँ और तुम अकेले हो। हाँ नहीं, वो तो खैर मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये चीज हमने पहले बात की, जब हम बात करते थे, तो हम लोग दोनों ही मतलब उसको, मुझे पता है हाउ शी, अब जैसे मुझे पता है उसके अंकल से ज्यादा लड़ाई होती है, बट उसमें भी उसको वो अपने लोगों से ही वैसा जताती है, लड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसिकली कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। हाँ नहीं, वो मेरे को हमेशा से ये लगा है कि वो उसका जो इंटेंशन है वो हमेशा अच्छा ही रहता है, मतलब देखिए गलत नहीं सोचती वो इस बारे में कभी भी। हमारा जो सोच है थोड़ा सा मतलब ओल्ड एज के हिसाब से या उस हिसाब से थोड़ा सा सोच रहता है, क्योंकि हम थोड़ा बिजनेसमैन फैमिलीज में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनको देखते हैं, तो हमें कई बार लगता है, तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन वो होता है, बट इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है कभी-कभी। नहीं, मेरे हिसाब से ये हेल्दी भी है टू एन एक्सटेंट, एंड एज लॉन्ग एज आप लोग सब लोग, दिनिका एज वेल एज आप, एक दूसरे की बात सुन के अगर डिसएग्री भी करते हो, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आप लोग मतलब सुनते हो एक दूसरे को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरे हिसाब से दिनिका जितना कनेक्टेड है आप लोगों से, वो बहुत कम लोग मैंने देखे हैं ऐसे कनेक्टेड है। बट आई हैव सीन कि जब व्हेन शी वाज एट होम कोरोना टाइम में, तो उसने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि हाउ टू लिव, हाउ टू प्रोटेक्ट। हाँ, वो अंकल मेरे को भी सिखा रही है। अब हम उसको रिमेम्बर करते हैं कि यार दिनिका होती तो ऐसा होता, शायद सोच के कोरोना मुझे तो लगता है, मैं तो बोलती हूँ इनको कि अगर दिनिका होती तो मुझे नहीं होता। तो हमें लगता है कि इसको कोरोना नहीं होता, सोच हो सकता है वो तो अंकल कुछ, हाँ वो तो खैर कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही रही है, और ये जो बाद में भी इश्यू क्रिएट हुआ, ये भी नहीं होता अगर दिनिका यहाँ पे रहती।
आई थिंक ये जो चीजें हुई है फॉर सम रीजन, जब अगर मैं इसमें कुछ अच्छाई देखने की कोशिश करता हूँ तो आई थिंक इसलिए हुआ भी है कि आंटी इससे और स्ट्रांग हो गई है मेरे हिसाब से। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीनिका ने जैसे आप लोगों हैंडल का किया। मतलब मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। मतलब मेरे को तो लगता है she is very intelligent, very mature. मतलब now I can trust on Dinika, and हाँ। I can share now I started sharing everything with Dinika. Nice. और मैं I can share now everything on my all secrets with Dinika. क्योंकि now चलो, I उसको ये trust सुन के अच्छा लगेगा उसको। बिल्कुल। एक क्वेश्चन था मेरे, अच्छा एक्चुअली 2 क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, तो आप एक एक करके, पहले आंटी आप आंसर करिए। चलिए, एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है दीनिका के बारे में, और एक चीज जो आपको इरिटेटिंग लगती है और उसको वो इम्प्रूव करनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा तो यही लगता है कि वो मेरा बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, जरूरत से ज्यादा ध्यान रखती है। और मुझे उसकी इरिटेटिंग तो कोई भी चीज नहीं लगती। नहीं आंटी, ऐसा नहीं बोल सकते हो। मुझे पता है आपकी फेवरेट है, बट आपको कुछ तो बताना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं, कुछ तो बात होगी जो चीजें आपको लगता है वो, चलो इरिटेटिंग से ज्यादा आई वुड से आप बोले कि वो थोड़ा उस पर और काम करे, ये बोलता हूँ। मतलब थोड़ा और काम करे, बस वही है कि वो थोड़ा अपने कैरियर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा अपना ध्यान करे। बाकी मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तरफ से कोई टेंशन ना ले, अपने कैरियर की तरफ ज्यादा ध्यान दे। अब जितना भी टाइम उसको मिलता है वो सारा अपने कैरियर के स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाए, ये मैं चाहती हूँ। ठीक है। और अंकल आपका? देखो, दिनिका के अंदर मैंने बताया कि शी इज वेरी मैच्योर एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी इज वेरी टचिंग। मतलब वो जितना स्ट्रांग दिखती है ना, वो है नहीं। बेसिकली ऊपर से अगर वो लोहा दिखती है तो अंदर से वो मॉम है वो। हाँ बिल्कुल। मतलब बहुत ज्यादा मतलब वीक है अंदर से वो। मतलब उसको किस फैमिली में कहीं पे कुछ भी जरा सा भी किसी के कुछ हो जाता है तो वो उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। मतलब शी इज वेरी मच वरीड। ये तो मैंने उसको रियलाइज किया। बट जो उसकी जो वीकनेस है दैट इज कॉन्फिडेंस लेवल। मुझे लगता है उसका आजकल कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो थोड़ा सा उसका डाउन है, शाई है। तो आई थिंक शी नीड्स टू इम्प्रूव। उसके अंदर मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहता हूँ कैपेबिलिटीज वर्ड में यूज करूँ क्या करूँ, मतलब शी इज वेरी मच कॉम्पिटेंट। पोटेंशियल बहुत है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है वो जो उसको पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि शी नीड्स बेसिकली हाउ टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे मतलब चीजें हैं, जैसे कुछ गुरुज भी हैं। मतलब शी कैन ज्वाइन सम क्लासेस जिससे मतलब उसको ये चीज जो है ना, मतलब ये कॉन्फिडेंस जो है उसका इम्प्रूव हो। तो उससे क्या है कि उसको मतलब एंड शी शुड फोकस नाउ कि भाई हाउ टू मतलब उसका अपना कैरियर। देखिए वैसे तो देयर इज नो इशू इन करियर, बट फिर भी सेल्फ उसको अपना उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई वेयर आई विल गो आई विल गेट द थिंग्स। और फिर उसको एक चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे जॉब के अंदर कोई भी चैलेंज मिलेगा, किसी भी टाइप का मिलेगा, दैट आई विल एक्सेप्ट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हम चाहें वो हमें मिले, वही सब कुछ मिले। हाँ वो तो है। कि जो हमारी चॉइस है उसी तरीके की हमें जॉब मिले। मतलब बेटर तो ये कि हमें जो मिलता है हम उसके अपने आप को उसके हिसाब से मोल्ड करें। ठीक है, नहीं सही बोला एकदम। आई थिंक बोथ पॉइंट्स काफी सही बोले। आई थिंक वो ऑलरेडी सोच रही है इन चीजों के बारे में, तो मुझे पता है वो चीज। सो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू जब वो सुनेगी आपके कमेंट्स को भी थोड़ा, आई थिंक शी विल वो अंडरस्टैंड करेगी कि आप लोग का क्या सोचना भी है। ऑन अ लाइटर नोट, अगर आपके साथ वो इतना टाइम रही है, अभी आई नो उसने बहुत कुकिंग भी की है, तो एक डिश जो आप लोगों को लगता है वो बहुत अच्छा बनाती है खाने की, और हो सकता है 1 हो 2 हो जो भी है, बट आपको लगता है वो बहुत अच्छा बनाती है, जो या तो आपने सुना हो या आपने खाया हो खुद या जैसा भी। पिज्जा बहुत अच्छा बनाती है, पूरा स्क्रैच से बनाती है, कोई भी चीज आर्टिफिशियल यूज नहीं करती। कुकीज बहुत अच्छी बनाती है। और अंकल आपका भी सेम आंसर रहेगा कि आपको अलग है आपका? नहीं, मैं इसमें थाई करी और ऐड करूंगा। हाँ हमारे एंड इसके अलावा पेस्टो पोटैटो। पेस्टो, हाँ ओह बहुत सही। इस बार उसने सुशी बहुत अच्छी बनाई। अरे सुशी तो मुझे बहुत पसंद हमें है। नहीं, सुशी यहाँ बहुत सारे लोगों को खिलाई उसने। मेरे को अब तक नहीं खिलाया, मैं उसको बोलूंगा अभी खिलाए मेरे को भी अभी। है पिज्जा तो खिलाया और बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनाया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी। अच्छा एक चीज मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, जो भी वो कुछ बनाती है
full dedication डेडिकेशन, हाँ and all पूरा all stress ingredients से जो है, बनाएगी। पूरे मतलब Scratch, ऐसा नहीं कि हाँ। उसके अंदर अगर उसके अंदर 4 चीजें चाहिए तो 3 चीजें नहीं, फर्स्ट वो कंसंट्रेट कि मुझे क्या बनाना है, उसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब सी कुक लाइक ए प्रोफेशनल। अंकल ये चीज सिर्फ कुकिंग में नहीं, वो काम मैंने साथ काम किया हुआ तो मुझे पता है, वो उसमें भी वैसे ही है एकदम। उसका मतलब एक छोटी चीज पकड़ लेती थी वो। मेरी वीकनेस है कि मैं थोड़ा ऊपर से कभी कभार हो जाता है, बट उसका जो अटेंशन टू डिटेल, हर एक छोटी सी चीज को पकड़ के रखना, वो बहुत उसकी स्ट्रेंथ है। सो जब हम बात करते हैं चीजों के बारे में तो मैं बोलता हूँ तुम्हारी ये, वो बोलती है मेरी ज्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ये नहीं है, मतलब आप बहुत स्ट्रेंथ है। ये चीज तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है कि आपको एकदम छोटी चीज याद रहती है और छोटी चीजों पर ध्यान रहता है, तो उसकी वजह से वो अपनी कुकिंग में भी दिखता है, उससे आई थिंक वो टेस्ट उभर कर आता है। तो आई टोटली अग्री। उसके लिए तो उसकी तो बेस्ट डिश जो है ही मतलब राजमा चावल। वो तो खैर अंकल वो तो खैर आंटी के राजमा चावल की गुण बहुत गाती है। वो मैंने तो खाए, मतलब मेरे को तो उसको लगता है कि वो मैं लेवल मीट कर नहीं पा रही हूँ कभी भी, तो मैंने बोला यार तुम जितना कर रही हो वो भी बहुत अच्छा है। कभी ना कभी करेगी, लेवल मीट करेगी कभी ना कभी। हाँ बिल्कुल, वो तो मेरे को पूरा उम्मीद है। तो मैं आपको आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अब नाउ दैट शी इज बिकमिंग 30 years old, ये बहुत लोगों के लिए मेंटली एक माइलस्टोन होता है। मेरे लिए तो खैर मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नंबर्स तो नंबर होते हैं, बट एक चीज अब आप दोनों अपना अलग अलग दीजिएगा, अपनी एक राय उसको देनी है। अब वो इस मकाम पे पहुंच गई है, इस जंक्शन पे पहुंच गई है कि इतना कुछ हो गया है अब और बहुत कुछ भी अभी होना है, तो इस पॉइंट पे आप क्या बोलेंगे? कुछ एडवाइस हो या कुछ चीजें जो आपने उसके साथ कभी बोली नहीं है या कभी शेयर नहीं की है, कुछ बोलना चाहेंगे आप दोनों? देखो, मैं समझता हूँ कि लाइफ के अंदर 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली कहते हैं हेल्थ एंड कैरियर, और ये दोनों चीजें आपने अचीव कर ली हैं तो बेसिकली वेल्थ आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है लाइफ का, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, जो दैट इज हेल्थ, तो उस पर इट शुड बी एट मोस्ट केयर। मतलब एटलीस्ट आई विल एडवाइज हर कि एटलीस्ट आउट ऑफ 24 आवर्स मिनिमम 1 आवर्स, अगर इफ पॉसिबल इफ शी कैन गिव 2 आवर्स दैट विल बी बेस्ट, बट मिनिमम 1 आवर इन लाइफ टू द हेल्थ, एंड नॉट 364 days 365 days। किसी वजह से मान लीजिए हमारे को किसी वजह से हमने एक दिन नहीं दे पाए तो फिर नेक्स्ट डे में वो डबल वी हैव टू। करेक्ट। बेसिकली क्या है, इफ योर हेल्थ इज परफेक्ट देन योर डिसीजन में भी परफेक्ट विल बी परफेक्ट, योर स्टेट ऑफ माइंड विल बी परफेक्ट, यू कैन फोकस योर कैरियर, यू कैन फोकस योर फैमिली, यू कैन फोकस मतलब यू कैन डू एवरीथिंग, you are happiest person in the world. So मतलब what I realized and मतलब the health is the most important thing। हम सब इश्यूज आ रहे हैं, सरोज के मैटर में भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसका हेल्थ इश्यूज रहे हैं, तो ऑल वी आर सफरिंग। सो बेसिकली क्या है कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ शी इज टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, तो बेसिकली सो दिस इज द टाइम कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। करेक्ट। सेकंड थिंग, अंकल बोलिए। सेकंड थिंग है कि उसके साथ अपना करियर ऑटोमेटिकली, जब हेल्थ ठीक रहेगी तो आदमी का स्टेट ऑफ माइंड भी ठीक रहेगा एंड एवरीथिंग विल बी गो स्मूथ। आंटी आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा आंसर भी मेन तो यही है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैंने उसको कभी नहीं बोला हो, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है जो कि मेरे मन में ऐसा कुछ हो, लेकिन यही है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखे और वो हमेशा खुश रहे, ताकि उसको मतलब अपने कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा लगे, हमेशा खुश रहे। और तुम लोग दोनों ही हमेशा खुश रहो, और मुझे तो ये लगता है कि मतलब मैं तुम सब लोगों के साथ रहूं, मुझे अकेला रहना अच्छा। हाँ नहीं खैर आंटी, हमारा ऐसा प्लान तो यही था, ये दिस वाज आवर प्लान। तभी हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि सिंगापुर इज अ प्लेस जो बहुत पास है घर के,
मेरे को बहुत लोग पूछते थे कि आप यूएस क्यों नहीं गए, यूएस में ये चीज मेरे को क्लियर था कि मुझे मेरा जो हर एक डिसीजन और दीनिका का डिसीजन भी एक्चुअली था कि जब भी हमें मन करे मुझे सोचना नहीं चाहिए घर जाने के लिए 2 बार। वो तो खैर ये ऐसा टाइम आ गया है कि थोड़ा सिचुएशन ऐसी हो गई, बट मेरे हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है बहुत जल्दी। अब मेरे हिसाब से बहुत जल्दी मिलेंगे, और जितना फ्रीक्वेंटली हम मिल सकेंगे और उतना वो हो करेंगे। मुझे पता है आप क्या बोल रहे हैं। मेरे को ऐसे जो बातें हम अभी कर रहे हैं, अगर हम बैठ के कर रहे होते आजू आमने सामने तो कितना और मजा आता, ऊपर से खाना पीना हो रहा होता। तो ये चीज थोड़ा डिले हो गया है, बट जल्दी हाँ। होगा। आई थिंक दिस वाज द वन ऑफ द रीजंस कि दीनिका के लिए ये मैंने सोचा कि ये मैसेज एज अ कॉन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके लिए बेस्ट गिफ्ट यही रहता है कि हम लोग सब साथ में या तो कहीं पे कुछ घूम रहे होते या कहीं बैठ के कुछ कर रहे होते। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो मैसेजेस हैं आई थिंक उसको बहुत अच्छे लगेंगे। आई थिंक हैप्पी एंड मुझे तो हमेशा लगता है कि हम सारे साथ रहे, सालवी, मयंक, हाँ, तुम, हाँ। दीनिका। मुझे लगता है कि मेरे को इतनी अच्छी मेरी फैमिली हो गई है बहुत। मतलब मुझे लगता है कि मेरी 2 बेटियां थी। मैं तो इनको ये भी कहता हूँ कि हो सकता है कभी कोई ऐसा चांस आ जाए कि भाई मतलब हो सकता है हम लोग वहाँ से कोई भी सिचुएशन बन जाए कि हम लोग वहाँ चले जाएं, या वो लोगों का कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि भाई हो सकता है दोनों का सेटअप इंडिया हो जाए, कोई ऐसी जॉब्स लग जाए या कंपनी से उनका मन कर जाए कभी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमें वी शुड इनकरेज टू द मतलब ऑल ऑफ यू कि वेयर एवर यू लिव यू लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। और हम लोग भी रहे, आप लोग भी खुश रहेंगे, बस हमारा भी यही है। नहीं, ये तो खैर अंकल, ये आप पेरेंट्स जो हैं वो लोग तो हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चों के लिए बेस्ट है, बट आई एग्री विथ यू। आंटी का भी पॉइंट एकदम से, कभी कभार लगता है, मेरे को भी लगता है कभी कभार कि सबसे बेस्ट के सिनारियो का रहेगा कि सब लोग एक सिटी में हो और ज्यादा दूर ना रहते हो घरों में। वो बेस्ट रहता है क्योंकि आप आ जा सकते हो और अपना वो कर सकते हो। बट भैया वो स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें होना जरूरी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, कुछ चीजें। बट अगर हमारी एक सोच है तो देखते हैं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है वो नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा रहेगा कि आप लोग कॉन्स्टेंटली या तो हम ट्रैवल करके हमारे पास हो, थोड़ा टाइम इंडिया, थोड़े दिन यूएस, जैसा भी। हाँ, कोरोना की वजह से हो गया, अदरवाइज यही हो रहा होता। इतनी फीलिंग नहीं होती, इतनी फीलिंग नहीं होती। अब तक तो पता नहीं कितने चक्कर लग चुके हाँ, होते। अरे तो हमने आंटी घर बर्तन सब आप सबके सोच समझ के लिए है सब चीजें। ये सब सोच तो कॉन्वर्सेशन मैंने और दीनिका ने भी जो किए हैं उस टाइप, ये सोच के कि अगर मम्मी पापा आएंगे तो क्या उनको लगेगा, तो वैसा टाइप का कुछ होना चाहिए, तो ऐसी चीजें रहनी चाहिए। सो उस सोच को रखते हुए हमने काफी डिसीजंस लिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दीनिका के लिए। मुझे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरी 2 बेटियां थी, मुझे तो 2 बेटे और मिल गए हैं। वो तो है, वो तो है। मेरी मम्मी को भी सेम चीज लगता है कि मेरी मम्मी को था ना कि 2 बेटे हैं और वो भी एकदम नालायक दोनों बेटे, तो उनको ऐसी बेटी मिली है जिनसे वो बहुत आराम से बातें करती हैं, और दीनिका भी वैसी ही है, तो बहुत गप्पे मारते हैं वो लोग भी। तो ये चीज दीनिका का मेरे को बहुत सही लगता है कि उसका फोकस, जैसे मेरे को भी फैमिली का फोकस बहुत लगता है, और उसका भी वैसे ही है, और वो सबके साथ चलती है, मतलब सबको साथ में लेके चलती है। तो बिल्कुल। और बेसिकली हमने दीनिका से भी कहा और साली से भी कहा, बेटे देखिए होम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। घर को ना स्वीट होम बनाना तुम्हारे हाथ में है, तो अपने घर को जो ना बिल्कुल सजा के रखना, क्योंकि जैसे हम अपने शरीर को सजा के रखते हैं ऐसे हमारा घर है। बिल्कुल। घर में अपने रोज नई नई चीजें आनी चाहिए, कभी अपने फ्लावर्स ले आए, कभी प्लांट्स ले आए। वो दिखता है अंकल आप लोगों का जो हमने ट्रेनिंग दी है, बहुत ही बढ़िया से रखती है वो घर को। मैं बहुत सीखता हूँ एक्चुअली, एवरी डे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। डांट भी पड़ती है मेरे को, बट मैं वो डांट के लिए रेडी रहता हूँ, क्योंकि वो बेटर है मेरे से इस चीज में। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है उनसे, और बड़ा अच्छा लगता है। देखिए आदमी को फीलिंग होना चाहिए व्हेन ही इज कमिंग फ्रॉम द, मतलब बिल्कुल, काम करके जब घर में एंटर करता है तो उसको एक फीलिंग आनी चाहिए कि मैं अपने घर में आया हूँ। करेक्ट। घर में देखो 2 ही चीजें होती हैं, आदमी को अच्छा फूड मिल जाए खाने के लिए और अच्छा एटमॉस्फेयर हो, तो वो फिर उसके लिए बेसिकली स्वर्ग है घर।
घर नहीं है, वो स्वर्ग है बेसिकली। बिल्कुल, आई टोटली एग्री, एंड वो रखती भी वैसे ही है, वो घर को वैसे ही रखती है। तो चलो, लास्ट विश यू वेरी वेरी दीनिका को उसके 30th बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उसके लिए हेल्थ वेल्थ उसको सब, उसको भगवान मतलब बुद्धि दे, उसके लिए बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं, और वो खुश रहे, उसकी हेल्थ ठीक रहे, जल्दी उसको अच्छी जॉब मिल जाए, उसका करियर बहुत बढ़िया हो, मतलब आप लोग बहुत खुश रहो, यही हमारी शुभकामनाएं उसके साथ। दीनिका को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, और उसको मतलब किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका 30th बर्थडे बहुत बहुत अच्छा जाएगा, आगे भी उसके लिए बहुत पूरा टाइम बहुत अच्छा रहेगा। उसको बहुत जल्दी जॉब भी मिलेगी, उसका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। मेरी ढेर सारी उसको आशीर्वाद है, हमेशा खुश रहे, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और उसका 30th बर्थडे बहुत अच्छा रहेगा उसको नहीं बोलिए, उसको किसी भी तरीके की वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो व्हाटएवर शी विल ड्रीम्स, ऑल ड्रीम्स विल कम ट्रू। बिल्कुल अंकल, आई थिंक अंकल आंटी आप लोगों ने बहुत आई थिंक कुछ चीजें ऐसे बोली हैं जो बहुत अच्छा लगेगा उसको सुन के। आई थिंक यही चीजें उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सब क्या सोचते हैं, क्या मतलब आप लोगों का क्या माइंड स्पेस है। उसको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों ने ये मैसेजेस दिए हैं। और उस दिन हमारी 30th को तो बात, मतलब फर्स्ट को तो बात होगी, बट उसको ये वीडियो जब देखेगी तो आई एम श्योर उसको बहुत अच्छा लगेगा। So yeah, I hope you enjoyed the video and the messages. I really wanted to wish you a very happy birthday, and I'm super excited to spend so many more countless memories that we get to make. Have a great day, have a great year, have a great life, and I love that we're gonna be on this journey together.